Right. So now coming back to the morphology chapter. Yesterday we completed the flower and the structure and the various worlds of the flower and their terminologies. Now today we are going to start with the terminology of the prominent flower. Firstly, for the flower, what are the terms? First is complete and incomplete. A flower can be complete or incomplete. What do you understand by a complete flower? Yes. Raise up your hands. Yesterday I told you to study this beforehand for the terms. Raise up your hands for complete and incomplete. What do you understand by this? No hands? Very bad. That means you people are not preparing at home. Complete means in which all 4 worlds are present. Okay, if the number of worlds, that is 4, is there, so it is a complete flower. Incomplete means if any one is missing. Any one जो missing होगा, 4 - 1 मतलब any one जो missing होगा वो यहाँ तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यहाँ वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. ठीक है, पेटल सेपल जो है वो मिसिंग नहीं होंगे. अगर वो अनडिफरेंशिएटेड है तो भी वो इनकम्प्लीट ही कहलाएगा. ठीक है, ज्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल वाले वो यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट रखते हैं. चारों वर्ल्स प्रेजेंट नहीं होते, 4 में से एक मिस हो जाता है. एंड दैट इज मोस्ट कॉमनली इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स इसमें अगर इन केस अगर वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, जैसे अनियन है, उसमें भी हम इसको इनकम्प्लीट ही बोलेंगे क्योंकि पेटल सेपल नहीं है, सेपल्स हैं. ठीक है, सो 3 वर्ल्स देयर. सो इफ इट इज मिसिंग 1 वर्ल्ड, then that means one type of the part of a flower is missed, then that is called as an incomplete flower. Okay, next is bisexual and unisexual flowers. A flower can be bisexual or unisexual. What is the other name used for or other term used for bisexual? In plants, what is the other name used for bisexual in plants? Yes. अब हो गया ना कंफ्यूज जब मैंने इन प्लांट्स लिख दिया साथ में. यस, हाँ जी, ख्याति. ओके, टेल मी. Monoecious. Monoecious, very nice. This is bisexuals, also called as monoecious. Monoecious, right? यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है ये दोनों टर्म्स एंटी हैं. मोनो मीन सिंगल, बाय मीन्स 2. ठीक है, लेकिन दे मीन द सेम. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना. मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाय का मतलब तो 2 होता है, पर ये दोनों कंट्रारी टू वन अनदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं इन अ सिमिलर मीनिंग. ठीक है, अब बाइसेक्सुअल का 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? 2 स्टैंड्स फॉर बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ओके, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है. ठीक है, तो बाइसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर है. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बेसिस पे हम इसको बोलेंगे दिस इज बाइसेक्सुअल. ऑन द बेसिस ऑफ द थैलस, मतलब एक ही थैलेमस के ऊपर दोनों बेयर अप होते हैं तो वो बाइसेक्सुअल है जब आप 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें. लेकिन जब थैलेस एक है तो उसके लिए मोनोशियस यूज कर रहे हैं, है ना. दोनों के लिए थैलेस एक है, चीज वही है, मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स यूज दोनों की डिफरेंट है. सो दिस इज ओनली वन थैलेस, दैट इज both the male and the female reproductive organs are born up on the single thalli. ठीक है, that is monoecious condition. Getting? Okay, next is opposite to this, the term used is dioecious. Now why I specified here only for plants? Is there any term different which is given in animals? Hanji, is there a term different term which is given for the same condition in animals? If yes, then tell me the term. Hanji, is there any other term which is also added for the same condition but in animals? No answer. For the animals, we use the term hermaphrodites. We use the term hermaphrodites. Okay.
It's a hermaphrodite for animals. Like earthworm is a bisexual animal. It is a hermaphrodite. Okay. Why I specified there for plants, that is monoecious. Animals में भी यूज करा जा सकता है monoecious, but ज्यादातर monoecious जो है वो thallus based plants में यूज किया जाता है. ऐसे ही hermaphrodite जो टर्म है, हो सकता है bisexual के लिए plants में कोई मेंशन कर दे, बट ज्यादातर इट इज यूज्ड इन द एनिमल्स. ठीक है, क्योंकि मीनिंग सेम होते हैं एंड कई बंदे अननोइंगली यूज कर भी देते हैं इन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, जस्ट टू कंफ्यूज द पीपल, जस्ट टू चेक योर जनरल नॉलेज. तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट. कमिंग टू दिस नेक्स्ट इज अ डायोशियस कंडीशन. सो व्हाट इज दिस डायोशियस कंडीशन? दैट इज हैविंग अ यूनिसेक्सुअल. यूनि का मतलब और डाई का मतलब, फिर से दो अलग अलग मीनिंग्स हैं. यूनि मीन्स सिंगल. What single? Reproductive organ single. That is either a male or a female. ठीक है, एक reproductive organ होगा, दोनों नहीं होंगे. ठीक है, uni means on the basis of reproductive organ. Dioecious means that is on the basis of thallus. This has two thalli. For bearing the male reproductive part, there is one thallus different. For female part, there is another thallus different. So दो अलग अलग flowers होते हैं, अलग अलग thallus होते हैं. Getting? Okay, so that is the term used for dioecious. Now coming to the next is, after this, the term is for symmetry. That is either actinomorphic or zygomorphic. Actinomorphic or zygomorphic. Anji, what do you understand by the terms actinomorphic and zygomorphic? That is related to the symmetry. If it is radial symmetry, then which one is it? Actinomorphic. Very good. So this is representing the actinomorphic represents radial symmetry, means roundabout में अब जिधर से मर्जी इसको कट करें ये always आपको symmetrical representation देगा. जैसे हमारा पिटूनिया फ्लावर था, प्रैक्टिकल में देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि दो पेटल्स के बीच में से भी टेयर कर सकते हो, है ना, या एक ही सिंगल पेटल के बीच में से कर सकते हो, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सिमेट्री, है ना. तो ये क्या है, अगर आप एक ही पेटल के बीच में से सेंटर में से ऐसे कट करते, 2.5 on one side, 2.5 इक्वल ऑन अनदर साइड. ठीक है, ऐसे ही आपका पूरा फ्लावर अंदर तक पूरा सिमेट्रिकल शो होता है. ठीक है, सो ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक. दैट इज कट अलोंग एनी प्लेन, इट प्रोवाइड्स अ सिमेट्रिकल व्यू. इट इज एक्टिनोमॉर्फिक. बट जाइगोमॉर्फिक क्या है, दैट इज कट अलोंग ओनली वन एक्सिस. It provides a symmetry only along one axis. Left right symmetry आएगा. ठीक है, तो इसके लिए कुछ लोग इस तरह परसेंटेज साइन भी डालते हैं, प्लस साइन भी डालते हैं. So both ways it is correct. ठीक है, but this plus sign has this length as tall. ठीक है, ये प्रॉपर मैथ वाला प्लस ऐसा नहीं आएगा आपको. This is proper plus, मतलब जीसस क्राइस्ट वाला प्लस. Okay, so this is actinomorphic and zygomorphic, right? Any confusion in any terms? और इसमें क्या आएगा, और कौन कौन सी टर्म्स हैं? सिमेट्री आपकी होगी. एसिमेट्रिकल टर्म्स भी यूज होती हैं. एसिमेट्री मींस दैट इज नॉट शोइंग एनी सिमेट्री, दैट इज विदाउट सिमेट्री. अगर सिमेट्री है तो इन दोनों में से, नहीं तो एसिमेट्री मींस नॉट हैविंग एनी सिमेट्री. देन इज पेंटामेरस, ट्राइमेरस एंड टेट्रामेरस टर्म्स. ट्राइमेरस मेरस टर्म्स क्यों लेते हैं हम? दिस इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. मतलब क्या है, एज द फर्स्ट suffixes, sorry, prefixes here, they are showing the number count. Tri means 3, tetra means 4, penta means 5. Merus means multiple. Okay, so this is multiple of, like let's say if they are in a flower, it is trimerous. ठीक है, जैसे एलियम सेपा होता है अनियन का, लिलिएसी फैमिली में बना हुआ है, आप देख लेना. That is trimerous. Being trimerous, all the whorls of this flower will be showing either 3 units or the multiple of 3 units. जैसे 3 पेटल है, 3 सेपल हैं, फिर उसके बाद आप कह लो कि 9 एंड्रोशियम्स हैं. ठीक है, तो ये क्या है, either 3 or multiple of 3. That kind of a flower will be called as trimerous. Either 5 units or multiple of 5. जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज देखा आपने, हिबिस्कस देखा है,
उसमें 5 पेटल्स हैं, 5 सेपल्स हैं, ऊपर स्टिग्मा भी देखेंगे तो 5 है, पेंटाकार्पिलरी, ठीक है, जो जो उसका बीच में से वो निकलता है ना स्टेमिनल ट्यूब, उसके बिल्कुल टिप पे देखना, ठीक है, 5 स्टिग्मेटिक नॉब्स नजर आएंगे, ठीक है, दैट इज बिकॉज इट इज पेंटामेरस, राइट। बट उसके एंथर्स बहुत सारे हैं, अब अगर आप उनके कले कले फिलामेंट्स को काउंट करोगे इट विल बी समवेयर नियर टू मल्टीपल ऑफ 5 ओनली, getting? So if it is the flower showing the various parts in the count of 3 or multiple of 3, 4 or multiple of 4, 5 or multiple of 5, these terms are used, getting? Next is the term used for bracts presence, that is bracteate or ebracteate. What is this bract now? Bract is, I told you, a small extra apart from the calyx, but a small extra leafy structure just at the base of the flower, ठीक है, जैसे ये हमारे पास twig है, peduncle वो जो कहते हैं आप इसका flower का है, ठीक है, this is the petiole of a flower and over it there is a whorl of the sepals, कुछ इस तरह से ये sepals का whorl है, ठीक है, बीच में से उसके जो flowers हैं, ये petals जो हैं वो arranged, something like this, right? But over here this is also bearing an extra leaf like this, something like this, एक extra leaf है साथ में, ठीक है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, depends upon, right? But there is an extra leaf just apart from the calyx that is called as a bract. What do we call it as? Bract. Okay, bract जो होती है वो फ्लावर के बेस पे होती है हमेशा, फ्लावर के साथ, थैलेमस के साथ, रिसेप्टिकल के साथ, ठीक है, वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, प्रॉपर ब्रैक्ट कवर करती है पूरा फ्लावर, कई बार कवर कर देती है ऑन ऑल द साइड्स, इतना बड़ा लीफ एक्स्ट्रा बना पड़ा होता है, ठीक है, सो दैट इज एक्स्ट्रा लीफ बट नॉट अ पार्ट ऑफ कैलिक्स, दैट इज ब्रैक्ट, ओके। इफ इट इज प्रेजेंट इट इज ब्रैक्टिएट, इफ इट इज एब्सेंट देन ebracteate, e term is added to show it is without bract, okay, got it? Now somewhere on the twig also, like let's say this is the main branch and from here the flower was arising, then यहाँ पे मेन ब्रांच पे कई बार क्या होता है कि जो लीफी स्ट्रक्चर है that may be present somewhere at the whole length, not at the axis, मतलब ये पूरा एक्सिल में भी नहीं होगा, ना ही पूरा फ्लावर के पास, somewhere intermediate, कहीं पे भी एक छोटा सा लीफ इस तरह से आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्टियोल, ओके। अगर तो बिल्कुल एक्सिल में है ये ब्रैक्टियोल है, अगर तो पूरा एक्सिल में है यहाँ पे लीफ, वो लीफ होता है क्योंकि लीफ की एक्सिल से ही फ्लावर्स राइज करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो यहाँ पे है तो वो लीफ है, समझ आ गया। लेकिन अगर उसकी फ्लावर की स्टॉक के ऊपर कहीं छोटा सा एक लीफ लगा हुआ है, वेरी स्केली लीफ, स्मॉल लीफ, दैट इज नेल साइज लीफ हो सकता है, ठीक है, तो अगर छोटा सा लीफ लगा है तो वो ब्रैक्टियोल है, गॉट इट, गेटिंग राइट? सो दिस इज द ब्रैक्टियोल एंड इफ इट इज प्रेजेंट कॉल्ड एज ब्रैक्टियोलेट, ठीक है, तो ब्रैक्ट का प्रेजेंस हम क्या कहेंगे, ब्रैक्ट के जैसा ही ये ब्रैक्टिएट है, वो ब्रैक्टियोलेट है, ठीक है, एंड फॉर इट्स एब्सेंस दिस इज कॉल्ड एज ebracteolate, ebracteolate, done. So these are a few terms concerned with the flower. Now coming to the various whorls. Further whorls are there. For the flower, the first whorl is that of outermost से innermost जाना है. Outermost कौन सा है? That is calyx. That is of sepals. अब यहाँ पे हमें क्या चीज पढ़नी होती है for calyx and corolla. Calyx is the outermost, followed by next that is corolla. Calyx units are called as sepals. This is a whorl which is made by sepals. Done. Here first of all you will be telling the number. जो भी type of flower आपने लिखा है उसके बेस पे आप इसका नंबर बताएंगे. If in the flower description you are writing it is 5, sorry it is pentamerous, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे 5, ठीक है. सेकेंड हम यूज करते हैं कि वेदर इट इज फ्यूज्ड और फ्री. 5 यूनिट्स तो हैं पर क्या ये फ्यूज्ड हैं या ये फ्री हैं, आपस में जुड़ी हैं, यूनाइटेड हैं या फ्री हैं. अगर तो ये फ्री हैं तो हम टर्म देंगे सेपल से
polycephalus. This is called as polycephalus. Got it? Next is if it is fused, united, we call it as gamocephalus. ठीक है? So second चीज आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे after the number? Either of the terms. We are to write the terms in the description always. We won't write that the sepals are fused. इस तरह नहीं लिखना हमने. ठीक है? सेंटेंस नहीं लिखना. हमने टर्म लिखना है gamocephalus, polycephalus. ठीक है? तो 5 नंबर के बाद क्या आता है? गेमो है कि पॉली है. ठीक है? सेपल्स वाले तो सेपलस, पेटल्स वाले तो पेटलस. ठीक है? नेक्स्ट इज इसके बाद आप बताते हैं एस्टिवेशन. एस्टिवेशन जो होएगा यानी गेमो पॉली लिखने के बाद फिर एस्टिवेशन बताते हैं, वो हम अभी करते हैं यहाँ पे आगे. नेक्स्ट कंटिन्यू. पहले यही टर्म्स हमारी कोरोला में भी यूज होती हैं. कोरोला इज व्हाट? दैट इज अ व्हर्ल ऑफ पेटल्स. दैट इज अ व्हर्ल ऑफ पेटल्स. Colorful units of a flower. Again same, you write the same multiple of 5 if you are mentioning as pentamerous the flower is. ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे भी बताना है, लेकिन फ्यूज्ड के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? इट इज गेमोपेटलस. ठीक है? अब ये पेटलस बन गई. ठीक है? और ऐसे ही अगर ये फ्री है तो पॉलीपेटलस. राइट? सो सेम इज द टर्म यूज्ड, only you have to change it with respect to the part, right? So this is a fused condition and a free condition. Similar term is used for tepals also. It is gamotepalous or polytepalous if they are not fused. Is gamotepalous in case of Liliaceae, that is onion. Okay. Next is estivation. Third thing I told you about calyx and corolla, what we have to see is estivation. What is estivation? Yes. Anyone? What is estivation? Yes, Diya. Anji, Diya. The arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to other members in a same whorl is known as estivation. Very good. देख के बोलिए. No, ma'am, book तो नीचे है. हाँ, learn की है. Very good. शाबाश. Nice. This is the arrangement of the single units of a whorl. That is sepals. अगर हम calyx की बात करें, what is the estivation of the calyx? ठीक है? अगर हम ये वाली बात करते हैं, तो calyx में किसकी प्लेसमेंट होगी? सेपल्स की ऑब्वियसली, है ना. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सिंगल यूनिट इन इट्स वर्ल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्स आल्सो. राइट? तो क्योंकि उनको अरेंजमेंट देना है, क्योंकि उनको वहां पे अरेंज होना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, वो ऑर्डर क्या है, वो तरीका क्या है, वो पैटर्न क्या है, इन अ फिक्स पैटर्न, दैट इज कॉल्ड एज अ एस्टिवेशन. ओके. सो either it can be the sepals whorl or the petals whorl, but the estivation types are same to this, right? This is first is simple, that is valvate. What is valvate type of estivation? Hanji, what is valvate type of estivation? It is when the units they are, फिर से दिया ही आंसर पड़े देगी है, बाकी सब लोग क्या सोते रहते हैं. हांजी दिया. When sepals and petals touch one another at the margin without overlapping shells. Without overlapping. They do not touch even, right? They may or may not be fused, क्योंकि वो फ्री भी हो सकते हैं. अगर टच करेंगे तो वो फ्री कंडीशन को ओबे नहीं करेंगे. ठीक है? So valvate is when there is no overlapping of the edges, no overlapping of edges of the units like sepals. ठीक है? तो ये क्या है? ये अगर सर्कल में अवेलेबल है तो all the 5 units they are available just end to end like this. ओके. ये 5 यूनिट्स आपको ये दिख रही हैं बीच में. अब सर्कल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपास. ओके. प्रैक्टिकल्स में ये चीजें आपको बनानी को आएंगी, लेकिन अदरवाइज फॉर योर थ्योरी पेपर यू हैव ऑल द दिस व्हाट डू यू से एमसीक्यू, है ना. तो एमसीक्यूज में आपको हो सकता है कोई ये सब पिक्चर बना के डायग्राम बना के दे दिया और आपसे पूछे कि व्हाट इज इट्स एस्टिवेशन, है ना. तो यहाँ मैच दिस एस्टिवेशन अलॉन्ग विद द करेक्ट मैच ऑफ इट्स एग्जांपल. ठीक है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं. So this is valvate.
no overlapping of the edges is there, they are present end to end. Second type is twisted. What is that twisted? When there is all the units are overlapping, the edges of all the units, they are overlapping one another, right? But in a fixed pattern, either clockwise or anti-clockwise. ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो एस्टिवेशन होती है ये हमेशा नोटिस की जाती है बड कंडीशन में. ठीक है, जब फ्लावर खिल जाता है तब हमें इतनी अप्रोप्रिएट नजर नहीं आती, हम इन्वर्ट करके देखते हैं, है ना. लेकिन अगर बड होगा, जैसे ये यूनिट्स बंद है, ठीक है, अगर ये यूनिट्स बंद है, आपको प्रॉपर यहाँ से पता चल रहा है कि दीज आर 4 आउट एंड 1 इज बीन ओवरलैप. 1 इनर हो गया ना, मेरा थंब अंदर है. ठीक है, तो इस तरह की एस्टिवेशन जो है ये आपको पता लगेगी. ऐसे ही अगर आप ओवरलैपिंग सारी फिंगर्स की कर दोगे इस तरह से, तो आपको वो 1 बाय 1 ओवरलैप नजर आएंगी. ठीक है, सो ये आपकी क्या है, बड में जब फ्लावर बंद होता है ऐसा. ठीक है, तो बड कंडीशन में ये अवेलेबल नजर आएंगी. सो ट्विस्टेड में क्या है, दिस इज, अगर आप कभी बड देखेंगे चाइना रोज का, तो आपको बहुत अच्छे से पेटल्स में नजर आएगी ये ट्विस्टेड कंडीशन. ठीक है, तो दिस इज 5 यूनिट्स, बट ऑल द यूनिट्स दे आर overlapped, their edges are overlapped by one another. That is in a fixed pattern. So fixed pattern means either running clockwise or running anti-clockwise. ये अंदर हो गया सब. This is going to be out. ये क्या हुआ, एक सेकेंड है, ट्विस्ट करना है इसको हमने, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, ट्विस्टेड में each should be overlapped like this. 3 4 5, ये twisted. ठीक है, so these are all twisted. You can see if the one margin is towards inner side, other outer, inner outer, inner outer, inner outer, inner outer. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कंफर्म कर लेना है whether it is going good or not, right? In your practicals, because you people are having only 2 of the experiments, maybe you can be asked only about that experiment, or maybe you can be given like ये चीजें आपको एक्स्ट्रा बनाने को भी बोली जा सकती है. ठीक है, राइट अ नोट ऑन एस्टिवेशन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. राइट अ नोट ऑन प्रेजेंटेशन एंड देन शो इट डायग्रामेटिकली. ठीक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल का जो सिंगल एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड इज ऑफ आई गेस 4 मार्क्स और समथिंग, 4 के हैं दोनों या कुछ ऐसा है. तो जितने भी मार्क्स में हैं, along with the performing, along with the writing up of that experiment, you can be also given extra question for writing up. Okay, questions भी आते हैं आपके प्रैक्टिकल में लिखने को, 11th में खासकर. ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको लिख देना है ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस प्रोड्यूस करनी है. रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. थ्योरी पेपर आप पहले दे चुके होंगे तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि प्रैक्टिकल में हमने लिखना कैसे. ठीक है, सो तैयारी उस तरीके से भी करना कि हमें सब्जेक्टिव भी देना है. ठीक है, ये नहीं है कि कल ऑब्जेक्टिव ही देना है, सब्जेक्टिव भी देना है. राइट, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड, दैट इज imbricate estimation. Imbricate estimation, in this there are 3 units that which are out of the 5 units. अगर imbricate में arrangement है, out of 5 units, 1 is totally inside of the wall, second one is totally outside of the wall, and the 3 units they show twisted nature. Okay, so imbricate that shows the arrangement in such a manner that there are 3 of the units showing twisted nature. ठीक है, twisted है, that is 1 inside, then another this way. ठीक है, ये twisted हो गया. अब 2 जो है वो पूरी तरह से, एक बाहर है पूरा और दूसरा पूरी तरह से अंदर है. ठीक है, दोनों मार्जिन्स मतलब उसके अंदर बाहर है. तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला. सॉरी, ये 2 बाहर होगा, एक मार्जिन इसका अंदर आना चाहिए टू शो द ओवरलैपिंग. सो दिस इज इट. ठीक है, इस तरह. तो ये अरेंजमेंट है, दैट इज imbricate. इफ यू कैन सी हियर, दिस इज फुली इनसाइड, है ना, दिस इज फुली आउटसाइड, द अदर्स आर हैविंग इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर. ठीक है, दैट इज दे आर शोइंग द इनर आउटर अरेंजमेंट, मींस ट्विस्टेड अरेंजमेंट. ठीक है, क्लियर. दिस इज imbricate when only 1 inside, only 1 outside and the 3 twisted. And जब हम दूसरा केस देखते हैं, quinquential, that is not there in your book, but we have discussed earlier also.
क्विनकुंशियल जो अरेंजमेंट है इसमें जो एस्टिवेशन होता है, यहाँ एक इन एक आउट है, लेकिन यहाँ पे क्विनकुंशियल में क्या होगा, 2 इन 2 आउट एंड देन ओवरलैप. ठीक है, सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो, क्विनकुंशियल एंड द फर्दर ऑक्सिलरी. फिर उसके बाद हम आगे प्रेजेंटेशंस पे जाएंगे एंड द फर्दर. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन, एनीवन हैविंग?